Assalamualaikum viewers and listeners. You are listening to Ahmed speaking from ARD Women's Podcast, episode number 26, fresh off celebrating the Silver Jubilee of ARD Women's Podcast. This podcast will take you to another level because the cricketer we are talking about today, वो भी उन्होंने एक्सट्रीम लेवल के क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए पिछले हफ्ते शी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट what a trailblazer, what an inspiration. We are talking about Javeria Khan. So, आज का agenda we have divided into mainly three sections: Javeria the batter, Javeria the captain, Javeria the entertainer. और इस पॉडकास्ट की थीम रहेगी Javeria the Euphoria. So for all that purpose, I am very much delighted जो आज मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं. Let's start with Sakina, the ever present on ARD, the OG of women's content creator, broadcaster, and writer. So, Sakina, thank you so much for joining. Hope you are as much as excited as I am for this special podcast. Thank you so much, Ahmed, for having me. And yes, I'm very excited for this. Yeah, pretty much, pretty much. And of course, mm, AR is all about giving exposures to the debutants. And talking about the debutant, आज मैं join करें Saim after a long, long. I mean, कुछ पहले हम एक तरह से पैच अप नहीं कर सके for previous 2 or 3 months, but finally I am really much excited. Wonderful work he's doing on Twitter, especially scouting, and of course domestic cricketers को बहुत अच्छा follow करते हैं. So for all his brilliant work, now he is part of ARD. आज इनका debut हो रहा है. Saim, thank you so much for joining, and how are you doing? Assalamu alaikum, Ahmed. Thank you very much for inviting and hoping today's episode goes well. And sorry आपका बहुत ज़्यादा वेट कराने के लिए. Thank you. नहीं, of course, best people at best time. So that is the theme. Okay, guys, let's start. And viewers, now it is about to hear from you. As I mentioned in my intro, above से सुनने के बारी है. Which one do you like the most? Javeria Khan, the better, or the Javeria Khan, the entertainer? We have kind of surprise package regarding the entertainer side of things. So stay tuned, and of course, stay I mean, let's put your thoughts, your tributes to Javeria Khan in the comment box, and of course, when it goes out on Twitter as well. Here is a short summary of Javeria Khan, the goat. Little shout out to now my friend, I would say Hassan, for this particular graphics. Please check out his special work on Shake and Bat. And here is a summary. So, Sakina, I mean, of course हम डेप्थ में जाएंगे इनके स्किल सेट के वाइज but one liner if you want to put out to his her whole career the Javeria Khan over to you. Okay, it's very difficult to put it in a one-liner, I would say. But I think she was a resistant. She was a person who always pushed her boundaries, and like she was a person who never gives up. सबसे बड़ी तो चीज ये है कि after uh, in a very much start of her career, she gets a very Yeah, big setback, but she pushes back for her as a batter. और फिर उसके बाद तो obviously, as you can see in the graphic, she's the second highest run scorer for Pakistan. तो obviously she is the person जो कि एक ऐसी role model है जिनको देख के आप you can take an inspiration कि आप yeah. तो किसी भी सिचुएशन के अंदर देयर इज ऑलवेज अ सेकंड डोर दैट इज ओपनिंग फॉर यू, तो आपको हमेशा चांस लेने की जरूरत होती है, एंड देन बाकी जो है वो फिर आपके हार्डवर्क के ऊपर है, और Yeah. इंशाल्लाह आपको जो रिजल्ट मिल जाते हैं. Pretty much sums it up and sets it up for the next point we are going to discuss. For me, two words मेरे ध्यान में फौरन आते हैं. Even though I would still be a newcomer to her journey, I am still learning to be get as much as inspired and follow her work, her cricket. Uh, but दो words जो मेरे ध्यान में आते हैं, that is the evolution in her game and specifically the fitness. Of course, we're gonna touch down in next segments as well.
You play around about 3 decades, international, domestic, all sort of cricket on the highest standards, pretty much all the way. Of course, dips आते हैं, but these two things would stand out for me. Okay, moving forward, Saim, आपकी तरफ आएंगे. I think so. Start. We all know she started as an all-rounder, and one can fairly say a bowling all-rounder, right? But 2 years into her journey, उनका bowling action ban हो जाता है. So please, for our audience, uh, recapture her initial journey, specifically as bowler, and what struggles she faced after being banned by ICC. जब उन्होंने वो एक तरह से ऑफ बॉलर्स पे एक तरह से लाइक काइंड ऑफ उन्होंने बैन जोन में लगे थे. साइद अजमल फेस दैट, मोहम्मद हफीज फेस दैट, few New Zealanders face that. So please do recapture the initial journey of Javeria Khan. आई थिंक उस टाइम पे हमें ज़्यादा उनकी बॉलिंग की फुटेज तो नहीं अवेलेबल, लेकिन अगर हम जो भी नंबर्स या रिकॉर्ड से हम देखते हैं तो जो उनके नंबर्स है, इवन उस टाइम में भी बाकी बॉलिंग कार्ड में ऐसे होता था कि बहुत एक्सेप्शनल फिगर्स होते थे. खास तौर पे 2008 वुमेंस एशिया कप में, तब आई थिंक बांग्लादेश के पास ओडीआई स्टेटस नहीं था, तो वो मैच 50 ओवर मैच ही काउंट हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने 6 विकेट हॉल लिया था, और मे बी उनका पाकिस्तान की तरफ से शायद वो पहला प्लेयर ऑफ द मैच था. और उसके Yeah, बाद भी अभी भी अगर हम उनके ओवरऑल फिगर्स देखें इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो आप अगर नाम हाइड करो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी बैट्समैन के, मतलब जिन्होंने इतने इतने अच्छे बैटिंग फिगर्स भी हैं, जिनके उनके इतने अच्छे बॉलिंग फिगर्स हो सकते हैं. और इवन 2008 के बाद 2009 में मैं देख रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान का इंग्लैंड का टूर था, जिसमें पाकिस्तान ने आयरलैंड और कुछ डोमेस्टिक साइड्स और इंग्लैंड अकेडमी के साथ खेला था, और उस इंग्लैंड अकेडमी में काफ़ी सारे इंग्लैंड के इंटरनेशनल प्लेयर थे. वहाँ भी एक मैच में उन्होंने 4 ओवर्स 4 विकेट्स थी उनकी. तो ऐसे फिगर्स yeah, थे कि बहुत एक्सेप्शनल बॉलर थी वो. और इवन उस टाइम पे भी आई थिंक बैटिंग में भी वो वे भी टैलेंटेड नहीं थी, उनके उन मैचेस में भी अच्छे रन कंट्रीब्यूशंस होते थे उस टाइम पे. 18 20 25 इस लिहाज से वो कंट्रीब्यूट कर रही थी. तो एक इंटरव्यू भी है जियो में उनका कि उस टाइम पे उन्हें लग रहा था कि उनकी क्रिकेट एंड होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिर अपनी एवोल्यूशन किया एज अ बैटर, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है, और पाकिस्तान के लिए भी फिर काफ़ी अच्छी बैटिंग में भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी. all right, all right. Moving forward, Sakina, of course, if you wanna add a subject, Javeria the bowler, or how she had to evolve her game, क्योंकि अगला segment हम Javeria the batter पे discuss करने लगे हैं. Soja, have your thoughts about this segment? I will just like to mention a few people here जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया जवेरिया Yeah, को yeah. उस प्रोसेस के अंदर. सबसे पहले तो उनकी मदर, उन्होंने उनको गिव अप Hmm. नहीं करने दिया. उनके भाई जो उनको स्पेशली जो है वो कोचिंग करते रहे. आई थिंक 2010 का ही रमज़ान था जिसमें उनके बकौल के उससे कि उनको जो है वो नाइट में कोच किया करते थे ताकि वो बैटिंग की तरफ जा सकें. और इसमें सबसे सबसे ज़्यादा जो एक कंट्रीब्यूशन जो रहा वो सनामीर का भी रहा, जिन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की उन्हें कि यू कैन कम बैक एज अ बैटर, कि आप जो है वो Yeah, प्योर बैटर के तौर पर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं. और दोनों के ही अगर आप उस टाइम के व्यूज़ देखें तो जेवेरिया वाज रियली मैड एट सना मीर कि उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट क्यों की है. लेकिन yeah, जो है वो उसके बाद फिर obviously Sana, Nain, Bisma, they all played their part in her journey. उस जो ट्रांसफर था फ्रॉम एज अ बॉलर टू द प्योर बैटर उसके अंदर. yeah, तो आई थिंक अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने जो है वो उनको हेल्प आउट किया, क्योंकि आप एज ए अकेले में कुछ नहीं कर सकते हो. इट्स ऑलवेज द आपको बैकिंग चाहिए होती है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है, फिर चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फिर जो है वो आपके लिए ऑन फील्ड हो. तो आई थिंक इसी तरीके से हीरोज बनते हैं, और उन सब के लिए भी एक अच्छा एक है कि फ्रूटफुल रहा उनकी कंट्रीब्यूशन. Yep, yep. Mad respect, and so nice of you to Skina for putting those names out. Okay, next segment की तरफ चलते हैं. We have kind of divided into Javeria the Batter in T20 eyes and Javeria the Batter in ODIs. Numbers आप लोगों के सामने हैं. They pretty much speak themselves, themselves, of course. बट ओके, आई मीन हमें एवोल्यूशन पे मैं दोबारा टच डाउन करना चाहूँगा. ऑफ कोर्स ये अगेन एक तरह से क्रेडिट जाता है. यू आर अ बॉलर एंड देन यू
are turned into a like primary opener, right? Mainstay रहती है opener में pretty much the whole of her career. So that speaks the evolution in her game. Cricket बहुत change हो रही थी specifically with T20 eyes, but I would mention her evolution in the game जो वो V पे खेलती हैं. शायद हाइटेडनेस वाले प्लेयर वैसे भी इवन आप जमाइमा को भी देख लें फ्रॉम इंडिया, वो बिहाइंड द स्क्वेयर बहुत अच्छा खेलती हैं. Even आप random cricket follower हैं, you would put Javeria Khan on the Google images. आप ज्यादातर शॉट उनके स्वीप्स और कट्स पे देखेंगे. Of course he has drives as well. Down the track बहुत अच्छा खेलती हैं. So साइम आपकी तरफ आते हुए, what things made her set apart, क्योंकि second highest run getter from Pakistan women's cricket despite all that evolution और जो struggles उन्होंने face की. So how would you sum up as a better in T20 Is and ODIs? आई थिंक एज यू सेड के वो ट्रेडिशनल शॉट्स तो अच्छी खेलती थी. आई थिंक वो अपनी बैटिंग में कोशिश करती थी कि कोई इनोवेशन हो, फील्डिंग को Yeah. किसी तरीके से वो सही से यूज़ कर सके. इवन आई थिंक लास्ट भी जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी चाहे उनके स्कोर्स वो नहीं थे, लेकिन शी वाज ट्राइंग कि वो पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूज़ करें, थोड़ी इनोवेटिव शॉट्स खेलें. और दूसरा जो आई थिंक शी वन ऑफ द फ्यू बैटर्स थी जो लंबी इनिंग्स खेल सकती थी. और जो कुछ उनकी बहुत अच्छी इनिंग्स है पाकिस्तान के लिए जिनमें ज़्यादातर उनके प्लेयर ऑफ द मैच है, उनमें वही कि शी वाज एबल टू स्टिक टिल द एंड और के मैच को फिनिश करें और लंबी इनिंग्स खेलें. इसी वजह से पहली जो हमारी 3 ओडीआई सेंचुरीज हैं उनमें से 2 इनकी थी. और इवन Yeah. श्रीलंका टूर में अगर आपने आगे उसकी बात करनी है तो Yeah. वो हमारा वन ऑफ द फर्स्ट टूर था कि वे में हमने ओडीआई में क्लीन स्वीप किया और टी20 में भी हम बहुत अच्छा खेले. तो उधर भी जहाँ मुश्किल चेजेस थे या कुछ ऐसी इनिंग्स थी तो उसमें शी वाज एबल टू प्ले ज़्यादा बॉल्स और रन्स भी साथ साथ स्कोर कर रही हैं. और तो आई थिंक दो अच्छी बातें थी उनके बारे में और इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस में पाकिस्तान को हेल्प किया. All right, all right. And Sakina, for all the viewers and of course Hussain और ईमान भी technical sides को देखने के लिए मौजूद है. Shout out to them. There is a fun fact. I mean, there have been 47 matches straight on the trot जहाँ पे जवेरिया खान कुछ स्कोर बना के आउट हुई, like zero पे आउट नहीं हुई. And she is the only Pakistani batter to have that long of a streak. So again, that speaks of the graft. uh, ओके, इवन तो उनके लाइक स्कोर्स हैं, आई वाज चेकिंग के 12 बॉल्स पे 2 हैं, 20 बॉल्स पे 10 है, बट शी वाज मेकिंग द जॉब इजियर फॉर द लाइक्स ऑफ बिस्मा एंड निदा. और इवन लेटर ऑन जब आलिया हमारे सेटअप में आ गई कि वो बॉल पुरानी हो चुकी है, बॉलर थोड़ा थक चुके हैं, सो शी लाइक एट टाइम्स डर्टी जॉब जिसे हम कहते हैं वो भी कर रही थी. सो सकीना, आपकी बारी है. हाउ वुड यू गिव अ ट्रिब्यूट टू हर बैटिंग स्किल सेट्स? Well, she was a terrific batter. और जैसे आपने शुरू में ही बात की थी कि उनके अक्सर जो है वो उनको जब कमेंट करते हैं तो वो अक्सर वो कह रहे होते हैं कि जो है वो ये कहते होते हैं ना कि उनकी हाइट के ऊपर लेके कहते होते हैं कि उनको शी इज स्मॉल पैकेट इन लाइक सम थिंग्स लाइक दैट. तो मुझे एक उनकी इनिंग्स का आई हैव Sure, पुट इन sure. माय फेवरेट इनिंग्स एज वेल. मुझे उनकी Yeah. इनिंग के बाद का इंटरव्यू याद है. शी स्कोर्ड 74 वर्सेस आयरलैंड इन वर्ल्ड कप. और उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि शी वाज लाइक प्लेइंग अलोंग विद द विंड, कि हवा चल रही थी तो उसकी हाँ, हाँ. डायरेक्शन के हिसाब से खेल रही थी. एंड इट वाज अ रियली मैच्योर्ड, लाइक उनकी उस कन्वर्सेशन को बार बार इसको किया भी जा रहा था, हाईलाइट किया जा रहा था कि कि दैट वाज अ रियली मैच्योर ऑफ हर, कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट को लेके जो है वो कर रही थी कि अपनी इनिंग को डेवलप किया उन्होंने, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया. शी वॉज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर और बहुत ही Yeah. जेन्युइन किस्म की के लिए, मतलब कि इवन along with like when she was playing with Sanamir और बिस्मा मारूफ, she was like the smartest player. और उनको जो है वो हंसी मजाक से प्रोफेसर भी बोला जाता था. नॉट एंड शी डिडंट हैव द सेम रीजन कि जो हफीज साहब के लिए यूज होता है, ये वो Yeah, वाली yeah. रीजन नहीं थी. I एक्चुअली got उनको it. प्रोफेसर Hmm. इसलिए बोला जाता था बिकॉज he was a smart person in the room. तो इसके अलावा आई थिंक आई विल जस्ट हाईलाइट दिस वेरी फन फैक्ट कि Sure, sure. 2010 के अंदर शी स्टार्टेड लाइक प्लेइंग एज अ प्रॉपर बैटर. एंड अराउंड 2016 or 2017 आई गेस both Bisma and Javeria completed their 2000 runs. और उसके बाद Hmm. continuously she was uh, like
वो क्रॉस करती थी विस्मा को ऑन द एज अ लीडिंग रन स्कोरर। तो वाह टिल 2020 जो है वो चलता रहा था कि वो ओडीआईस के अंदर वो अगेन एंड अगेन दूसरे को दोनों क्रॉस कर रहे होते थे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट द फैक्ट कि वी या रिगार्ड बिस्मा एज द बेस्ट बैटर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। So at her या peak, she was beating her, and she was beating her with a margin. Wow. Oh, wow, wow. Oh, wonderful, wonderful report. I loved it. I loved it. Okay, साइम आपकी तरफ आते हैं। सकीना ने एक अपनी फेवरेट इनिंग्स पुट कर दी है। आई रियली लव जब मैंने आपसे पूछा एंड यू वेंट विद दिस फ्यू इनिंग्स। सकीना वुड लव इट टू। सो साइम ऑफ कोर्स इन दो इनिंग्स पे टच डाउन करें एंड स्पेसिफिकली टच डाउन व्हाट वाज योर मेमोरीज अराउंड दोस इनिंग्स। सो ओवर टू यू साइम। और स्लाइड्स पे व्यूवर्स देख सकते हैं आपकी दो फेवरेट इनिंग्स फ्रॉम जवेरिया खान दी बैटर। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस तो यही था कि इन इनिंग्स की वजह से टीम जीत रही थी, और या दूसरा ये कि जो और खासतौर पर आई थिंक T20 तो शायद स्ट्रीम नहीं हुए थे, लेकिन जो ODIs थे वो फेसबुक पे स्ट्रीम हो रहे थे। तो उसमें पहले शी बिल्ट उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी लंबी इनिंग्स खेली, और आखिर में जाके हमारे को आखिरी 2-3 ओवर्स में हमने 30 नतालिया थी शायद उनके साथ 30-40 रन मारे, और उधर भी उन्होंने लास्ट ओवर में रिवर्स स्कोप मारा अपना। और तो आई थिंक बहुत अच्छी बात थी इनिंग्स के कि आखिर में जाके 250 हमने किया था उस इनिंग्स में, कि शी वाज एबल टू एक्सेलरेट इन द एंड, और फिर टीम हमारी जीत रही थी और फिर हम पूरी ODI सीरीज जीते। और उसके बाद T20s में भी पहला ही मैच था, उसमें आई थिंक चेस कर रहे थे हम, और गुलाम फातिमा का जो डेब्यू वाला फिनिश था, तो उसमें भी यही था कि बाकी ज़्यादातर टीम जल्दी आउट हो गई थी, और ये इन्होंने और बिस्मा ने ज़्यादातर रन किए थे, और फिर आखिर में पाकिस्तान जीत गया था। तो आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस यही थी कि इस परफॉर्मेंस की वजह से टीम जीत रही थी, और हम दोनों ODI और T20 सीरीज जीत गए थे श्रीलंका में। वंडरफुली बट सकीना आपके दूसरी इनिंग्स की पिक्चर तो मुझे नहीं मिली बट बट जिस तरह जो फराज की ट्वीट्स होती हैं शाउट आउट टू हिम एज वेल। आई लव दैट क्रिकेटर। इसी तरह से हाई मोमेंट पे सकीना नाज की ट्वीट्स भी होती है। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे 12 मई है आई थिंक सो, सकीना नाज की ट्वीट्स आप लोग देख सकते हैं। आलिया रियाज प्लेड अ ब्लाइंडर ऑन दैट डे एज वेल। सो जा सके ना इस इनिंग्स को भी रिकैप्चर करते हैं और अपनी मेमोरीज। वेल, हम एक अच्छा बड़ा स्कोर चेस कर रहे थे। आई थिंक 240 के करीब था स्कोर जो साउथ अफ्रीका ने पहले हाँ स्कोर किया था। 242 यस, तो वी वर चेजिंग इट, और जब इनिशियली विकेट्स गिरी हैं कुछ, तो वी वर लाइक वी हैड गिवन अप के हमेशा की तरह अब नहीं मैच बचना। बट या बोथ आलिया एंड जवेरिया प्लेड विद सो मच मैच्योरिटी ऑन दैट डे। और वो मुझे बल्कि एक मोमेंट याद आ रहा है अभी फौरन से आपने से बात की तो ट्वीट्स की बात की तो कि आई थिंक इट वाज जवेरिया वो प्लेड अ शॉट, और आलिया जो थी वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थी उनकी कमर में जाके बॉल लगी, और वो तो क्योंकि मुझे याद इस वजह से आ रहा है क्योंकि उस पूरे मैच के अंदर लाइक इट वाज लाइक हाईएस्ट स्कोर जो हमने से स्कोर किया था उस टाइम के अंदर, हमने जो है वो मैच टाई किया था, लेकिन वो उस वीडियो के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रही थी क्योंकि जिस टाइम वो बॉल जाके लगी तो जुवेरिया डिडंट रिएक्ट टू इट, लाइक शी जस्ट इग्नोर्ड दैट थिंग कि ये हुआ है। ऑब्वियसली उस टाइम आप हाई ऑन इमोशंस होते हो तो ऐसा इस तरह की या चीजें भी हो जाती होती हैं। तो आई जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। लेकिन आई थिंक वो इनिंग मेरी क्योंकि दैट मैच इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट मैच, क्योंकि जो उस टाइम जो था ना वो आपको जिस इमोशंस जिस तरह कर रहे थे कि हम जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे, इवन टिल द लास्ट बॉल जिस टाइम जिस पे 6 हिट हुआ था, तो वो जो है वो मैच ही कुछ और था मेरे लिए, तो स्पेसिफिकली बात है। एंड ऑब्वियसली जवेरिया लाइक वो आप अगर आपने से पहले बात की थी कि जब आप उस पेस को खेल लेते हो तो उसके बाद चीजें इजी होना या शुरू हो जाती हैं, एंड इफ यू हैव समवन लाइक जवेरिया स्टैंडिंग ऑन द अदर एंड, या तो आलिया के लिए भी चीजें इजी हो गई थी उस मैच के अंदर। इट वाज अ रियली गुड इनिंग फ्रॉम हर। इन दो मैचेस के अलावा मैं एक और मैच की बात करूंगी। श्योर आई श्योर थिंक श्योर 2019 के ना जब जब बांग्लादेश ने हमें टूर किया था, इट वाज द सेकंड T20 व्हेन she scored Javeria scored 50 and Bisma scored 70. I just wanted to put that match, highlight that match because I think that was the match when Bisma and Javeria become at that time the या most successful partners in T20 cricket in या Asia, Asian partner. तो वो मुझे या एकदम से याद आया था पुट इट क्योंकि आई थिंक दैट वाज 2019 वाज द लास्ट टाइम हमने जो उनको इस तरीके से या इकट्ठे बैटिंग करते हुए देखा था। उसके बाद जो है वो 2020 के अंदर तो एक वर्ल्ड कप भी खेला था, उसके बाद जिसमें ब्रेक पे चली गई एंड देन या
उस तरीके से कभी वो नहीं बना कि हम देख सके, क्योंकि उसके बाद उतनी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट फेज में चली गई थी जवेरिया के लिए। सो या या दैट्स इट। वंडरफुल। और एक चीज अभी मेरे ध्यान में क्लिक हुई, ये चारों इनिंग्स देखें, साइम ने जो तो पिक की और जो स्किना ने पिक की, एंड सकीना ने जो एक और बांग्लादेश वाली बताई। लाइक अभी हमने 5 मैचेस ऑन द सरफेस डिस्कस किए, दैट ऑल आर ऑन अवे कंडीशन, ठीक है, एंड इन अवे की ट्रांजिशन हो रही थी, but that speaks again highly of not only her temperament but your technique matters as much as your temperament. So again a shout out to her batting like technique as well are really sound, and जैसे मैंने word use किया था grafter, she really does have that aura to her. So हमने दो चीजें डिस्कस की हैं एज ऑफ नाउ, जवेरिया द बॉलर उनकी इनिशियल जर्नी कवर की, अभी जवेरिया द बैटर along with the picks from Skina and Sain. So now it is the time जिसके लिए मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा excited था. Thank you so much to Skinner for all the research for that purpose. We as ARD team bring you forward Javeria the Euphoria, a little tribute to her on the field and off the field aura and excitement. So Javeria the Euphoria, here we go. She's quite naughty. Yeah, she is a very good friend of mine, and we have played a lot together, and I think we have a very a big partnership together. We joke to each other, and we are very teasing friends to each other. We have a lot of understanding while we bat together. 8, nice. से भी ना जा सकी, खो गए पागल तेरी यादों में हम, चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे। बहुत सपोर्ट किया, दो मैं सीए करना चाहती थी, और आई एंड अप डूइंग बीए, बिकॉज इन क्रिकेट यू कैन जस्टिफाई बोथ क्रिकेट एंड स्टडीज एट द सेम टाइम। हेलो, आपका कुछ होगा लिंक शिंक, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या लिंक शिंक? तो यूनिवर्सिटी नहीं, को तो यही है आपको ना, प्राइवेट इदारे छोड़ते ही नहीं है, या तो आप पढ़ाई कर लो। मतलब आप कहने का मतलब डिग्री चाली इनकी करूंगी, मैं सोचूंगी इस पे। जरा देखो यहाँ आँखों में बसता है तेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। Captaincy era of Javeria and the matches that the minimum, she didn't get the whole run, but the minimum matches she played. आई थिंक जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था जवेरिया का एज अ कैप्टनसी टेन्योर का, वो ये था कि शी वाज नेवर अनाउंस्ड एज अ परमानेंट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम। शी वाज ऑलवेज लाइक द स्टैंड इन कैप्टन। तो बेशक वो 2018 के अंदर जिस टाइम जवेरिया की विस्मा की सर्जरी हुई थी, तब शी स्टेप अप, या फिर 2021 के अंदर जब उन्होंने कैप्टनसी की, शी वाज ऑलवेज अ स्टैंड इन कैप्टन। तो कहीं ना कहीं जब आपको और आपकी टीम को ये पता होता है कि यू आर नॉट द पर्सन कि जिसकी परमानेंट जॉब है, एंड देयर समवन हु विल कम बैक एंड टेक ओवर, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आप अपनी जो तरीके हैं, ये जो आपके अपने मेथड्स हैं, यू कांट इम्प्लीमेंट इट एज एज मच एज यू वांट टू। तो आई गेस ये एक पार्ट रहा उनकी कैप्टनसी का, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस था उनके लिए। और दूसरी चीज़ एक ये भी रही कि फॉर द मेजॉरिटी पार्ट जिस टाइम वो उन्होंने कैप्टनसी की, तो 2018 के अंदर वन शी कैप्टन, उस टाइम जो थी वो बिस्मा एब्सेंट थी। 2021 के अंदर वन शी कैप्टन, बोथ बिस्मा एंड सना वाजंट इन द टीम एट दैट टाइम। तो सना में तो रिटायरमेंट ले चुकी हुई थी। तो वो ट्रांजिशन फेज था
जो कि एक डिफिकल्ट फेज होता है किसी भी टीम के लिए, और फिर एक ऐसी टीम जो कि बहुत रिलाई करती है ऑन देयर सीनियर्स। तो लेकिन आई थिंक या आई विल से कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो है वो जवेरिया ट्राई हर बेस्ट, इसमें कोई दुराई नहीं है। ऑब्वियसली शी डिडंट गेट दैट दोज रिजल्ट्स एज कि जो उनको जो है वो जितना उन्होंने कोशिश की होगी ऑब्वियसली, बट आई विल गिव हर ऑल द रिगार्ड्स कि उस डिफिकल्ट फेज के अंदर भी उन्होंने जो लीड किया टीम को, और एक अच्छे तरीके से लीड किया, जितना वो कर सकती थी उन्होंने उतना सारी एफर्ट पुट की उसके अंदर। और आई नो इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट एट दैट काइंड ऑफ फेज, और फिर ऑब्वियसली वो कोविड का एरा भी था। But I think she did her job well. She can be proud of the job that she did in those matches. बाकी जो है वो शी इज़ वन ऑफ दोज कैप्टन्स जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप में लीड किया है, और वर्ल्ड कप में विक्ट्री भी है उनकी, तो कुडोज टू हर फॉर दैट एज वेल। आई थिंक सकीना ने अच्छा समराइज कर दिया, और हम खासतौर पे इस केस में ऐसे देख भी नहीं सकते कि विंस कैप्टन की वजह से हैं या कैप्टन की वजह से रिजल्ट्स चेंज हुए। मतलब कैप्टन का रोल थोड़ा सा ओवर एम्फेसाइज हो जाता है जब आपकी टीम की स्ट्रेंथ पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसी टीम है, कैप्टन का उसके ऊपर रोल होता है। तो और ख़ासतौर पे जैसे सकीना ने कहा कि जवेरिया के टाइम पे मोस्टली बिस्मा खेल नहीं रही थी ओडीआईज़, तो आई थिंक बिस्मा ने कोई भी नहीं खेले, और टी20 भी बहुत कम खेले जिनमें जवेरिया ने कैप्टनसी की हो। तो अगर टीम की स्ट्रेंथ वैसे नहीं है तो कैप्टन चेंज करने से रिजल्ट्स पे फ़र्क नहीं पड़ना था, और बाकी सही था उनकी कैप्टनसी का टाइम, और वो स्टैंड इन कैप्टन थी और फिर बिस्मा आ गई थी, तो आई थिंक यही है। Well, with all the honesty, I think PCB is not very good at giving farewells, और वो आपके मेन क्रिकेटर्स को भी नहीं देते हैं, तो वो क्रिकेटर्स भी साइड पे हो जाती हैं। लाइक सना मी को कभी फेवर प्रॉपर नहीं मिला था, चलो ओके वी कैन एक्सेप्ट द फैक्ट कि ओके ऑन दैट टाइम कोविड चल रहा था और सारा कुछ था, मसला था, बट लेकिन जो है वो हमने जिस तरह से देखा है पीसीबी को, I think if they think that's the best they can do with putting all the videos out there on the social sites, um, तो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए आई थिंक। और इवन कि मैं भी कहूँगी कि थोड़ा सा हार्डन इस सेंस में भी किया गया कि थोड़ा सा उनको जो है वो, आई डोंट नो अभी भी क्या कन्वर्सेशन हुई होगी जवेरिया की और पीसीबी की, बट पीसीबी लाइक कट हर आउट फ्रॉम द टीम लाइक अ टाइम बैक, लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ 2022। तो अभी तक वो थी इन पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक, और जो भी जिस तरह भी सिनेरियो चल रहा था, तो आई थिंक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होनी नहीं चाहिए कि जो इस तरह के प्लेयर्स हैं, स्पेशली आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके लिए कि वो जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट से आउट हों और फिर इस तरीके से चीज़ें हों। तो वो स्मूथ चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ पर कोचेस या फिर टीम की जो मैनेजमेंट है, दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद देयर प्लेयर्स कि ओके अब हम जो है वो चाहते हैं कि वी वांट टू मूव ऑन और समथिंग लाइक दैट, और आप उनको इन रिटर्न कुछ दो, उनको सिक्योरिटी दो, किसी कोई भी चीज़ इस तरह की होती है। लेकिन उस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती नहीं है, इसकी वजह से चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं एट दी एंड। वही सिनेरियो यहाँ पर भी रहा है। जहाँ और फेयरवेल की जहाँ तक बात है, तो आई थिंक अभी भी पीसीबी जो है वो कुछ 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 कर सकता है। ऑब्वियसली वी आर अबाउट टू हैव अ सीरीज एट होम, तो उसके अंदर इवन अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप और कुछ नहीं भी कर रहा पीसीबी, तो बुला के एक शील्ड ही जो है वो दे देता है टू रिकॉग्नाइज हर सर्विसेज। So yeah, I think there are a lot that can be done if PCB wants to. Okay, in an ideal scenario, if we have the Women's Super League, Javeria Khan should be leading one of the teams. But I don't know Women's Super League कब होगी, होनी भी है या नहीं. And moving on, Shield का idea, obviously Shield, it's a bare minimum PC we could do, and obviously NSK पे वो series होनी है, तो they should have a ceremony, they should have all our family there, and they should be presented with the Shield. What about you, Saim? आपका क्या कहना चाहिए कि फेयरवेल जवेरिया खान को कैसे देना चाहिए पीसीबी को, एंड व्हाट दे कैन डू, एंड उनका अभी सिनेरियोस पे जो रिएक्शन था वो अप्रोप्रिएट था या नहीं? फर्स्टली तो आई थिंक जवेरिया की अभी भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। अभी इवन लास्ट टूर्नामेंट में कराची की टीम ने ओवरऑल अच्छा नहीं किया, लेकिन बैटिंग में अगर कोई प्लेयर उनका सही से खेला है, ख़ासतौर पे टॉप ऑर्डर में, तो जवेरिया ने ही रन्स किए हैं ज़्यादा। तो आई थिंक, मुझे कंफर्म तो नहीं, लेकिन शी माइट हैव बीन लुकिंग कि अगर वेस्ट इंडीज़ कैंप में उनको सेलेक्ट किया जाता है कि नहीं, और फिर जब
थोड़े दिन बाद ही नाम आए तो उन्हें पहले पता लग गया और शायद कि नहीं है अब वो प्लान्स में। तो आई थिंक वही है, पीसीबी की कोई शायद कंसिस्टेंट पॉलिसी है नहीं। वो मतलब इसको एज अ कोटा ही फील कर रहे होते हैं कि बस जो चीज़ हो रही है उस तरीके से चलाते जाओ, कोई खास थॉट आउट करते नहीं हैं चीज़ों को। और जहाँ तक फेयरवेल की बात है, आई थिंक अब तो रिसेंटली मे बी अगर हम हफीज़ की एग्जांपल लें, हफीज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, असर शफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नेशनल टी20 के बाद अजहर अली को अच्छा फेयरवेल मिला था। तो अगर पीसीबी सोचे वुमेंस क्रिकेट के बारे में तो यहाँ भी पीसीबी कुछ कर सकता है, और खासतौर पे जैसे सकीना ने अब सीरीज़ का मेंशन किया तो उधर उनको अच्छा एक फेयरवेल दे सकते, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते। कभी पता ही नहीं चलता कि किस प्लेयर ने क्या, कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं कि किस प्लेयर ने क्यों कौन सा स्टेप क्यों लिया है। और तो आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और थोड़ा सा फेयरवेल हो सकता है अब इस सीरीज में। All right. Thank you, Osana, for chipping in. And of course, Javeria deserves all the plaudits. And, any one of you, please petition from ARD. That is regarding the enclosure at NSK. I mean, I do get the point कि जिन लोगों के नाम पहले स्टैंड पे आ चुके हैं, that is bit disrespectful to them, but I was having a deep dive. कुछ क्रिकेटर्स तो फाउंडिंग मेंबर्स अगेन आप उनका स्टैंड कराची में नहीं ले सकते, बट देयर इज अ क्रिकेटर अराउंड 1970s, 18 टेस्ट मैच के लिए, बट हर like his ancestors played a part in building NSK like some sort of property. So I think so achievements are there to be like जैसे records broken करने के लिए होते हैं. So why not we give a stand to Javeria, who has been the one of the finest product in men's and women's cricket, I would say, from the Karachi. So again, I am just too imaginative from the playbook of Skinner, but anyway, that was my little mini rant. Okay, I think so we are pretty much done with tribute to Javeria Khan. Here is a recap: Javeria the Batter, Javeria the Captain, Javeria the Entertainer, and as we done, there is a modified version of the video we played earlier. So we gonna sign off with those vibes again because that is what describes Javeria the most. So thank you, Skinner. Thank you, Sign, for joining. Thank you, Sana. Thank you, Iman, for all the background and on the screen stuff. Thank you so much, listeners and viewers. Please do drop your thoughts, your tributes, and we sign off with this little tribute.